Everyone, how are you? I hope you all are fine. Well, so today in this video we'll see cursive writing, okay? How to write cursive writing. So we'll understand in this video, okay? But before starting, let me discuss some points with you which you should know, which you should be aware of that, which would be very helpful. Let's start. So my first point is tracing practice. Okay, so start with tracing. Okay, give them tracing practice means you have to give tracing practice to your kids. You can easily get the books from market, means from any stationery shop, and you can easily get that books and give your kids to trace. Okay, means ट्रेसिंग प्रैक्टिस की एक बुक होती है जो आपको जाके स्टेशनरी के शॉप में लेना है, उनको बोलना है कि कर्सिव राइटिंग के लिए ट्रेसिंग बुक दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स से व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज you will see whenever we make sentences, whenever we write sentences, most of the letters which we write in small letters in any of your, you can see storybooks or any books like your textbook and all everywhere, means you will see small letters are more preferable. Okay, that's why I am saying that. I can show you also. See, this is the storybook, and here see, you can see everything is written in small letters. Okay, lowercase. Okay, here it is in capital letter, but downside you can see the story is in small letter. Okay, see, I have another storybook. Here also you can find stories are written in small letters. Okay, lowercase. Okay, so I hope the second point is clear to you. Now coming to the third point, here I have written don't compare your child with others. Okay, we don't have to compare our child with others. Okay, so maybe my neighbor's child or some other child is learning 3 or 4 letters in a week. So here what I will do, I'll understand my child's speed. Okay, I'll not force them, I'll not force him or her to learn 4 or 5 letters in a week. If he or she is learning 2 letters in a week, then I will make them learn slowly, means I will increase their speed slowly. I will not force them to learn 4 letters in a week because they are very small. You give them pressure like learn 4 letters in a week, learn 5 letters in a week. No, we don't have to do that. Okay, if they are going to learn 2 letters in a week, they will definitely learn 4 to 5 letters also. Slowly we will increase their speed. Okay, so we will not pressure them, we will not force them to learn more letters. Okay, and the most important is give time to your kids. Okay, if you are going to think that I'll give homework to my kids and they will complete that, then no, you have to sit with them. Okay, you have to sit along with them and you have to tell them to practice. Okay, whatever work you have assigned them, whatever work you have given them, you have to tell them. Now see, here the problem arises when we directly give them to write. Okay, so before starting this, क्या होता है ना कि हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस देते हैं बच्चों को। ठीक है, स्ट्रोक्स सिखाते हैं हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस मीन्स नॉर्मल कर्सिव राइटिंग। ओके, तो हम लोग चलिए देखते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स विच वी शुड लर्न एज अ पेरेंट फॉर द किड्स। ओके, पेरेंट्स को इसलिए बोल रही हूँ कि पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड, देन दे टेल देम टू किड्स। ओके, तब वो किड्स को आसानी से समझा पाएंगे, इसलिए मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि पेरेंट्स अगर लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो किड्स को भी सिखा पाएंगे। सो दीज आर द स्ट्रोक्स। ओके, तो सबसे पहला है हमारा ये जो है इस तरीके का, सबसे पहला जो हमारा है ये देखेंगे इस तरीके का है, इसको बोलते हैं हम लोग लूप पैटर्न। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लूप पैटर्न। पहला ये हमारा है। दूसरा है हमारा, इसको बोलते हैं जैसे ऐसे वाला है, ऐसे वाला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड लूप। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड लूप। देखिए लूप बन रहा है ना यहाँ भी, ये दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड लूप। ठीक है,
तीसरा देखिए हमारा ये यू की तरह है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला हमारा है। तो एक ये पैटर्न भी हमारा है। फिर नेक्स्ट यही इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके से एम की तरह, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से स्ट्रोक्स हैं जो बिफोर मतलब राइटिंग, कर्सिव राइटिंग हमको ये सीखना है, ठीक है, और बच्चों को सिखाना है, ठीक है, जिससे कि बहुत ही इजी हो जाएगा लिखना वो लेटर। ये है सी की तरह, ठीक है, ये वाला पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो ये पैटर्न है हमारा। फिर एक एस वाला है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पैटर्न। फिर नेक्स्ट ये ओ वाला पैटर्न है, ठीक है, ये ओ वाला पैटर्न है, मतलब एक चेन चल रही है, चेन में लिखा हुआ इस तरीके से। तो देखिए ये जो है ना हमारा ये लूप है हमारा, ठीक है, ये जो इस तरीके से बन रहा है ये लूप है, इसलिए हम इसे लूप पैटर्न बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा लूप है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये पैटर्न्स हैं, ये कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं, आप इसको यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। देखिए उन्हीं मतलब जो पैटर्न मैंने बताया उन पर ही बेस्ड हैं ये लेटर्स, ठीक है, ऑल 26 लेटर्स आर बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स ओनली। यू कैन सी हियर, देखिए ये जो मैंने पैटर्न सिखाया आपको सी वाला, उसमें देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बच्चों को मतलब सिखा सकते हैं ईजिली। अगर मतलब पहले उनको हमें उनकी प्रैक्टिस करानी है लूप्स की, मतलब वो स्ट्रोक्स की, सारे ही स्ट्रोक्स की, तब ये ईजी हो जाएगा लिखना, ठीक है। हियर ऑल्सो यू कैन सी, देखिए IUWTJPRSNO। Again you can see this set of letters, okay, here HKLBFNE, they are following what, they are following loop, ठीक है, इसमें loop बन रहा है, you can easily see that, okay। Again you can see MNVXYNZ, ठीक है। तो इस तरीके से हम उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है, because they are of same patterns, they are following the same patterns, okay, that's why I have written it टुगेदर, ओके। अब देखेंगे हम लोग ए कैसे लिखते हैं। देखिए ए कैसे लिखते हैं, देखिए ए के लिए हमने ऐसे बनाया, ऐसे किया, ऐसे लिखा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये करना है, पहले एक स्लैंडिंग लाइन बनानी है, फिर उसे इस तरीके से बनाना है, फिर हमें इस तरीके से लिखना है, ओके, एक स्लैंडिंग लाइन, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगेन फिर से देख लीजिए, एक स्लैंटिंग लाइन, देन इस तरीके से, इस तरीके, मतलब हमारा पेंसिल नहीं उठ रहा है कहीं, देखिए मेरा पेंसिल कहीं नहीं उठेगा, देखिए इस तरीके से, देखिए देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है, बहुत इजी है, धीरे धीरे हम सिखाएंगे, बच्चे सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, 2 ही लेटर सिखाइए। अगर वो 2 लेटर सीख रहे हैं एक वीक में तो काफ़ी है ना यार, 2 लेटर्स अगर वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे 3 सीखेंगे, धीरे धीरे 4 सीखेंगे, धीरे धीरे 5 सीखेंगे। अभी तो मतलब नया है ना, बेसिकली बहुत ही नया है उनके लिए, न्यू है, इट इज़ वेरी न्यू टू देम, क्योंकि उनको तो आदत है वो वाला ABCD लिखने का ना, सिंपल, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने समझ लो वो सीखा है, बच्चों ने मतलब सीखा है, और हम फिर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक नया सेट ऑफ पैटर्न्स, नया एक राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग की, मतलब ये कर्सिव राइटिंग आप सीख लो बच्चों। तो ठीक है, अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीखेंगे, बच्चे हैं, वेरी स्मॉल हैं, सब सीख जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।